بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 26 شعبان 1440 ہجری پر مطابق 1 مئی 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں محمد عمران۔ سعودی خواتین سری لنکا میں نقاب کی پابندی پر عمل کریں۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں قائم سعودی سفارتخانے کی جانب سے اپنے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہنگامی قانون پر عمل کرتے ہوئے عوامی مقامات پر نقاب کا استعمال نہ کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سری لنکا میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی کے بعد ہنگامی قانون جاری کیا گیا ہے جس کی پابندی کرنا سب کا فرض ہے۔ عربی نیو ویب سائٹ اخبار 24 نے کولمبو میں قائم سعودی سفارتخانے کی جانب سے پیر کے روز جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا کہ ہنگامی قانون کے تحت عوامی مقامات پر جانے والی سعودی خواتین اس قانون کی سختی سے پابندی کریں۔ سفارتخانے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ان دنوں سیاحت و تفریح کے لیے سری لنکا جانے والی سعودی خواتین بھی اپنے چہرے پر نقاب نہ لگائیں۔ سعودی شہری مقامی قوانین کا خیال رکھیں اور ان دنوں یہاں ہنگامی حالات نافذ ہیں۔ واضح رہے سری لنکا میں خودکش حملے کے بعد صدر سیریسینا نے عوامی مقامات پر نقاب پہننے یا چہرے کو چھپانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نقاب پر پابندی کا اطلاق پیر سے کیا گیا ہے۔ سری لنکا صدر کے دفتر سے جاری بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ نقاب پر پابندی کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے جس کے لیے مقامی اور یہاں آنے والے غیر ملکی پابندی کریں۔ اس حوالے سے سعودی سفارتخانے کی جانب سے بھی بیان جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قانون پر سختی سے عمل کریں۔ تصاویر مقام ابراہیم کی تزئین و آرائش۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں مسلمانوں کے مقدس مقام مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کی مرمت کا کام جاری ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے گزشتہ دنوں مقام ابراہیم سمیت مقبرہ معظم اور مقبر کی جگہ کے علاوہ حجر اسماعیل کے پتھر کی تبدیلی اور مرمت کا آغاز کیا تھا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اور مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے مقام ابراہیم میں جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی رمضان مبارک سے قبل مرمت کا کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ حرمین انتظامیہ نے کہا کہ مقام ابراہیم میں جاری مرمت میں بیرون سنہری ہال کا شیشہ تبدیل ہوگا، علاوہ ازیں نیا سنہری ہال چڑھایا جائے گا۔ مقام ابراہیم کی بنیاد میں سنگ مرمر کی تبدیلی کی جائے گی۔ دوسری طرف مقبرہ میں بھی شیشے کی تبدیلی کے علاوہ بنیادی آلات کی تبدیلی کا کام جاری ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کی آمد کی مناسبت سے مسجد الحرام میں 21,000 نئے قالین بچھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حرمین انتظامیہ نے مسجد الحرام کے اندرونی حصے میں نئے کارپیٹ بچھانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلامی علماء کرام کے مطابق مقام ابراہیم میں موجود پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جبکہ ان قدموں کے نشانات پر پیتل کا ہول چڑھایا گیا ہے۔ مختلف ادوار میں اس مقام کی تزئین و آرائش کا کام ہوتا رہا ہے اور اسے شیشے کی پلیٹوں سے بنی کرسی پر چپساں کرایا۔ خلیفہ منتصر باللہ نے 241 ہجری میں شیشے کے بجائے چاندی کی پلیٹیں تیار کرائیں۔ بعد ازاں مقام ابراہیم کے لیے ایک کمرہ بنوایا۔ 900 ہجری میں اسے ازسر نو تعمیر کرایا گیا۔ زمانی سلطان عبدالعزیز نے گنبد کو 1.5 میٹر اونچا کرایا۔ پھر جب امیر سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے حج کیا تو انہوں نے گنبد ختم کرا دیا۔ 18 رجب 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی جس کی بدولت حرمین شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ حالی ہو گیا۔ سعودی عرب میں سگریٹ کی درآمد میں 43% کمی۔ سعودی عرب میں سگریٹ کی درآمد پر اضافی ٹیکس نافذ کرنے کے ثمرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سگریٹ کے درآمدات میں 43% سے زائد کمی کی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے مضر صحت اشیاء پر اضافی ٹیکس نافذ کیا تھا جس کے نتیجے میں گزشتہ سال سگریٹ کی درآمد میں 43.1% کمی واقع ہوئی ہے۔ سعودی محکمہ کسٹم کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال مجموعی طور پر 1.78 بلین ریال کی مالیت کی سگریٹ درآمد کی گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں 2017 مجموعی طور پر 3.13 بلین سگریٹ کی درآمدات کی گئی۔ یاد رہے 2017 میں سگریٹ پر اضافی ٹیکس نافذ نہیں ہوا تھا۔ محکمہ کسٹم نے کہا کہ اس سال رواں کے مطابق پہلی سہ-ماہی میں 8.72 ٹن سگریٹ درآمد کیے گئے ہیں جن کی مجموعی مالیت 500 ملین ریال ہے۔ محکمہ کسٹم نے کہا کہ منتخب اشیاء پر نافذ ہونے والے ٹیکس نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں۔ حکومت نے گزشتہ سال سگریٹ اور تمباکو سے بننے والی تمام اشیاء کے علاوہ سافٹ اور انرجی ڈرنکس پر بھی 100% تک ٹیکس نافذ کیا تھا جس کے نتیجے میں سگریٹ کی قیمتیں دگنی ہو گئی تھیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے مضر صحت اشیاء کے علاوہ آسائش کے زمرے میں آنے والی اشیاء پر بھی اضافی ٹیکس لگا دیے تھے۔
सऊदी अरब 2025 तक गैस बरामद करने लगेगा। दुनिया में तेल की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको के चेयर पर इंजीनियर अमीन नासर ने कहा कि सऊदी अरब 2025 तक गैस बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। इंजीनियर अमीन नासर ने कहा कि हमारा टारगेट जूनिया 3 अरब मकाब फीट गैस बरामद करने का है। ये हदफ आस्ता आस्ता हासिल किया जाएगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक नासर रियाज में कुवैत, सल्तनत अमान, इराक और पाकिस्तान में तेल और गैस के कुएं की खदाई के मुतल्लिक एक माहदे पर दस्तखत करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। नासर ने कहा कि कुवैत, इराक, पाकिस्तान और सल्तनत अमान में पेट्रोल और गैस के कुएं की खदाई में अल हफर अरबी कंपनी की शराकत का मुआहदा बेहद अहम है। इसकी बदौलत हमारी कंपनी मशरिक़ वस्ता की बड़ी कंपनी में शामिल हो जाएगी और इसकी हैसियत मुल्की के बजाय रीजनल कंपनी की बन जाएगी। नासर ने कहा कि अल हफर कंपनी के कारकुनान की तादाद 6000 तक हो जाएगी। इसकी बदौलत तेल और गैस की सनत में सऊदियों का किरदार बढ़ जाएगा। अमीन नासर ने बताया कि एनर्जी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले का आगाज जल्द हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ीर तवानाई हालत फ़ाल मुमलकत में गैस के ज़बरदस्त ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद रीजनल गैस नेटवर्क में तोसी के लिए मुत्तहिदा अमारात और सल्तनत अमान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी अरब इस साल तजदीद तवानाई के कम से कम 12 मनसूबे के टेंडर जारी करेगा। बलजर्शी में ख़वातीन फोटोग्राफर क्या कर रही हैं? सऊदी अरब के बाहर रीजन में तरीही बलजर्शी इलाके की अहमियत उजागर करने के लिए 14 सऊदी ख़वातीन फोटोग्राफर के दरमियान एक मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है, जिसका मकसद मुकामी शहरों के अलावा गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो भी इन मकामात की जानब मबज़ूल कराना है। बाहर रीजन में मुतअद्दिद तारीखी मकामात हैं। फोटोग्राफी और तजरीदी आर्ट्स की शाइक ये 14 ख़वातीन सऊदी बाहर रीजन के तरीही मकामात का रिकॉर्ड करेंगी। बाहा का इलाका खुसूसन कदीम करियों का तर्ज तामीर अपनी एक पहचान रखता है। बाहा के तर्ज तामीर में कदीम करिए अपनी एक पहचान रखते हैं। ख़वातीन फोटोग्राफर अपने फोटोग्राफरी में बलजिशरी करिए के मकानात के स्तूनों, खिड़कियों और दरवाज़ों के नकोश उजागर कर रही हैं और मकानात के तर्ज तामीर की तफसीलात मुअय्यन करने के लिए इनका रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं। बलजिशरी फ़नून लतीफ़ा के मातहत शोबे निस्वां की चेयरपर्सन लैला अल हामिद ने अल अरबिया टीवी को तफसीलात बताते हुए कहा कि बलजिशरी का इलाका तरीही विरसे का खजाना अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ का तर्ज तामीर तरीही भी है और मुनफरद भी। इसका तकाजा है कि माशरे को कदीम विरसे से आगाह किया जाए। अवाम को बताया जाए कि बाहा में आबाद हमारे आबाओ-अजदाद ने फ़न तमीर में किस तरह के अछूते फ़न का मुज़ाहरा किया था। उन्होंने मकानात के दरवाजे और खिड़कियों पर जो नकुश और गुल बूटे कंदे किए वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हें उजागर करना ज़रूरी है। लैला अल हामिद ने मज़ीद बताया कि फोटोग्राफी और तजरीदी आर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाली हमारी बेटियां और बहनें बलजिशरी इलाके के मकानात की खसूसी रिकॉर्ड करके अपने फ़न को जला दें। इससे फोटोग्राफरी और तजरीदी आर्ट से मुतल्लिक़ सयाहों को फ़रोग़ मिलेगा। तजरीदी आर्ट की फ़नकारा सामिया आल उस्मान ने तवज्जो दिलाई कि दरवाज़ों पर गुलबूटों के कदीम नकुश इंतहाई फ़नकाराना तरीके से तराशे गए हैं। हमारे आबाओ-अजदाद ने यह काम सादा आलात के ज़रिए अंजाम दिया था। इसके बावजूद दरवाज़ों और खिड़कियों पर बने गुल बूटे नहायत हसीन और बेहद नाज़ुक हैं। इन्हें बाहा सूबे की सेहत की मुकम्मल की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तजरीदी आर्ट की एक फ़नकारा सामिया सईद ने कहा कि फोटोग्राफर ख़वातीन जो कुछ कर रही हैं वो इंतहाई अहम काम है। इसकी खावश की बदौलत आबाओ-अजदाद के अछूते फ़न विरसे का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। सऊदी अरब को सियाह से 211 अरब रियाल की आमदन। सऊदी महकमा सियाहत कौमी विरसे के मातहत टूरिस्ट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मास के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब को 2018 के दौरान सियाहत से 2211 अरब रियाल की आमदनी हुई। मुमलकत में सियाहत का शोबा तेल के अलावा इक़्तिसादी शोबों में सबसे ज़्यादा फ़रोग़ पा रहा है। सियाहत से होने वाली आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टूरिस्ट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक 2004 में 57.3 अरब, फिर 2016 में 166.8 अरब और 2017 में सियाहत से 193 अरब की आमदनी हुई है। साल रवां 2019 के दौरान रिकॉर्ड आमदनी की मतवक्को है। मास ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सियाहत का शोबा मुकामी शहरों को सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करने की अहलियत रखता है। बिलवास्ता और बिला वास्ता असामियों की तमहीना 10 लाख तक है और 2030 तक इनकी आमदन 20 लाख तक पहुंच जाएगी। सऊदी महकमा ने कलीदी अरदों पर फाइज शहरों की तकर्री और उनकी शरह बढ़ाने पर प्रोग्राम जारी कर दिया है। सऊदी महकमा सियाहत ने 2019 की पहली छमाही के दौरान 46 टूरिस्ट गाइड्स को लाइसेंस जारी किए। महकमा मुमलकत के तमाम इलाकों में टूरिस्ट गाइड की तादाद
95 मिलियन है। इसमें रियाज पहले, जद्दा दूसरे और अल-अहसा तीसरे नंबर पर है। दाखिली सेहत को फरोग। सऊदी स्कूलों और कॉलेजों में सालाना तातीलात के दौरान ज़बरदस्त सियाती मौसम बनाया जाएगा। तैयारियां शुरू कर दी हैं और क़यामत तक सियाती प्रोग्राम होंगे। सऊदी अरब दाखिली सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए हम्मा जहती इक़दामात की पॉलिसी पर गामज़न है। न्यूम, हमाला, बहर अहमर, जद्दा टाउन और अल-अला सऊदी सियाहत के मुस्तक़बिल में अहम मराकज़ पर होंगे। सऊदी माशरे में ख़वातीन का नुमायां हुआ किरदार। 16 साल के अवाइल में जब शहज़ादी रीमा बिंतर बिन सुल्तान को सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका के लिए सफ़ीर मुकर्रर किया गया, तो यह तारीख़ी दिन न सिर्फ शहज़ादी रीमा बल्कि तमाम सऊदी ख़वातीन के लिए खुशी, वलवले और नई उम्मीद का था। सऊदी अरब अब बदल रहा है और शहज़ादी रीमा की तरह ममलकत की आम ख़वातीन भी मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम देते हुए आगे बढ़ रही हैं। सऊदी विज़न 2030 में ख़वातीन को मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने के लिए मौक़े फराहम करने के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। इस विज़न के तहत न सिर्फ 30% ख़वातीन को लेबर मार्केट में मौक़े फराहम किए जाएंगे बल्कि सियासी ओहदों पर भी फाइज किया जाएगा। सऊदी रुकन शूरा नूरतुल शहबान हमवतन ख़वातीन के मुस्तक़बिल के हवाले से बात करते हुए कहती हैं कि सऊदी अरब ने इस्लाहात और तमीर और तरक्की का मरबूत सिलसिला शुरू कर रखा है। इसका आगाज़ ममलकत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने किया था। इसके मुताबिक सऊदी विज़न 2030 और कौमी प्रोग्राम 2020 पानी ममलकत की उमंगों के तर्जमान हैं। सऊदी विज़न और कौमी तब्दीली प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को लेबर मार्केट में मुकम्मल शराकत, सलाहियतों के फ़रोग़, तवानाई के बरोकार लाने और मुस्तक़बिल साज़ी के हवाले से किरदार अदा करने के लिए मुनासिब मौका मिल रहे हैं। नूरतुल शहबान मज़ीद कहती हैं कि सऊदी ख़वातीन भी आरज़ूमंद हैं कि इन्हें सरकारी और निजी शोबों में कलीदी अहदों पर मौक़े फराहम किए जाएँ। नूरतुल शहबान ने मज़ीद सऊदी खबर रसा इदारे से बात करते हुए नूरतुल शहबान मज़ीद बताती हैं कि ख़वातीन को महकमा पासपोर्ट, मुकम्मल महकमा जेल, थानाजात, महकमा ट्रैफिक और महकमा शहरी दिफा में भी अपना किरदार अदा करने के लिए शोबे काम किए गए हैं। इसके अलावा लेडीज स्पोर्ट्स क्लब भी कायम किए जा रहे हैं ताकि ख़वातीन खेलों की दुनिया में भी अपनी सलाहियतें मनवा सकें, जबकि ख़वातीन को पिमा और तैराकी में भी हिस्सा ले रही हैं। मुस्तक़बिल के जदीद शहर न्यूम में क्या हो रहा है? सऊदी अरब में मुस्तक़बिल के जदीद शहर न्यूम में खेलों की सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। गैर मुल्की और सऊदी खिलाड़ी ने न्यूम में पहली मरतबा खेलों की सरगर्मी में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने न्यूम के पहाड़ सर करने और फ़ज़ा से छलांग लगाने के मुजाहरे किए। खेलों की इन सरगर्मियों में पहाड़ों को सर करने वाले आलमी चैंपियन जर्मन खातून जूलियान और सऊदी ख़वातीन पेमा यास्मीन अल गहतानी ने भी हिस्सा लिया। दोनों ख़वातीन ने न्यूम शहर के मुख्तलिफ पहाड़ सर किए। इसी तरह गैर मुल्की और सऊदी खिलाड़ियों ने महसूस लिबास पहन कर फ़ज़ा से छलांग लगाने का मुख्तलिफ करतब दिखाया। फ़ज़ा से छलांग लगाने वाले बरतानवी खिलाड़ियों ने कहा कि न्यूम में पहली मरतबा करतब दिखाकर इन्हें खुशी हुई। इनका कहना था कि न्यूम के पहाड़ इंतहाई खूबसूरत हैं और इनका शुमार दुनिया के मकामात में होता है जिन्हें दरियाफ़्त करना अभी बाकी है। न्यूम शहर के मनसूबे का ऐलान 24 अक्टूबर 2017 में किया गया था। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्तक़बिल के शहर न्यूम का इफ्तिताह एक अज़ीमतशान तक़रीब में किया था। न्यूम शहर मुस्तक़बिल मुल्क के शमाल मगरबी इलाके में तबूक के मकाम पर बसाया जा रहा है। इसका कुल रकबा 26,500 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें 468 किलोमीटर बहरा अहमर और खलीजी अक़बा का साहिली इलाका शामिल है। शहर के मशरक़ में 2500 मीटर ऊंचा पहाड़ इलाका वाक़या है। न्यूम 3 बरआज़मों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इसमें सऊदी अरब के अलावा उर्दन और मिस्र के इलाके शामिल होंगे। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के 48 घंटों की अहम तरीन खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आखिर में नीचे अरब उर्दू टीवी के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।